Hello students, welcome to EduStop. Let's continue with the next topic, which is structure of C program. So today's lecture is about what is the structure of the C program. So let's write it out. First, you have to write the preprocessor directives. Then global variable declarations. Don't worry, I will clear it out. Main, and then local variable declaration, then executable statements. Here will be this semicolon. Then after that we write some user defined functions that will be defined by you, means us. Function 1, here will be the declarations and the executable statements. You can write any number of functions. Function 1, function 2, up to function n. So students, what are these? I have written here the preprocessor directives, then global variable declaration. What are these and how will you use these? So students, preprocessor directives are nothing but the special files we add in a program. These are the special files we add in the program. ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन आता है। फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? जो कि इस पूरे प्रोग्राम के द्वारा नोन होगा। और मेन फंक्शन इज एक्ट्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। Starting point, and this is local variable declaration. It will be only known by the main function, the executable statements and in the main function. And then after that जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं वो स्टेटमेंट्स आप लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे लिखिएगा। देन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हम प्रोग्राम के एंड में लिखेंगे। हम कितने भी नंबर ऑफ़ फंक्शंस लिख सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन 1 टू फंक्शन n। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इन सब का रियल में क्या यूज़ है। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, ग्लोबल वेरिएबल, इन सब का क्या यूज़ है। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजीली क्लियर आउट हो जाए। सो आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन।
program okay. Hash include stdio.h main, then printf this is my program. So students, let's look at this example. First I have written the hash include stdio.h in this angle brackets. These are angle brackets. You have to write the stdio.h in these angle brackets, okay. And next I have written the main function and then the curly braces, and in the curly braces I have used the printf statement. This is my program. तो मैंने ये किस बेसिस पे ये चीज़ें लिखी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करना होता है. एक ऐसा स्पेशल फाइल है जिसमें आप यहाँ पे ऐसे फंक्शन, जो ये मैं प्रिंटर फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, इसका डिक्लेरेशन इसी में है, इस stdio.h में. तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन इन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में प्रेजेंट होता है. तो इसलिए हमें ये इंक्लूड करना होगा stdio.h. और इसी की तरह और भी हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जैसे एक है हैश इंक्लूड conio.h. ये जो हैश इंक्लूड conio.h है, ये भी हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. इसका फुल फॉर्म क्या है? conio.h का फुल फॉर्म है console input output, and this h is for header file. ओके. एंड जो मैंने ये stdio.h यूज़ किया है, ये क्या है? stdio.h. दिस इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट header file. Okay, this is the standard input output header file. These are the header files we include in the program because the predefined functions इन जो ये predefined functions हैं, इनका declaration कहाँ पे होता है? इन्हीं what is this? This is the special file preprocessor directive, or we can also say it the header files. Okay, और जो ये main function है, main function हमें सारे programs में include करना होगा in the C programs. ये मेन फंक्शन क्या करता है? मेन फंक्शन जो होता है, इट एक्ट्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन. कोई भी आप फंक्शन लिख रहे हो, ये एक स्टार्टिंग फंक्शन आपको, ये ऐसा फंक्शन है जो सारे प्रोग्राम्स में इंक्लूड होगा. ओके, एम आई राइट? सो लेट्स राइट इट आउट. these things are the header files. Okay, these are the header files. Next is our main. ये क्या डिक्लेयर करता है कि हमारा फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इट डिक्लेयर्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन. ओके, एम आई क्लियर? और जो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं, दीज कर्ली ब्रैकेट्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज कर्ली ब्रैकेट्स? तो ये क्या करते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको ग्रुप करने का काम हमारा जो कौन करता है, दीज कर्ली ब्रैकेट्स. तो वी यूज़ दीज कर्ली ब्रैकेट्स इन सी टू ग्रुप द स्टेटमेंट्स टुगेदर. ओके, कर्ली
brackets. What is the use of these curly brackets? It is used to group the statements together. Okay, then next is our printf statement. This printf statement, we use the printf statement to print any statement in the program. Okay, what is the use of this printf statement? Printf. The text is to be printed in the program with the help of this. ओके, देन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दिस, these double quotes. These double quotes is necessary to use in the printf statement. अगर आप ये डबल कोट्स लगाओगे द कंपाइलर विल शो द एरर. ओके, ये डबल कोट्स के अंदर ही आप कोई भी मैसेज अपना प्रिंट करवा सकते हो. The text to be printed will be enclosed in double quotes. Okay, then next thing is this semicolon. What is the use of this semicolon? It acts as the delimiters. It acts as the delimiters. कोई भी आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो, आप जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखिएगा इन द कर्ली ब्रैकेट्स, दैट विल बी एंडेड बाय दिस डिलिमिटर्स. ओके, ये शो करता है कि जो ये हमारा फंक्शन यूज़ हो रहा है या कोई भी स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है वो अब यहाँ पे एंड हो चुका है. ओके, तो वी यूज़ दिस सेमीकॉलन. Acts as the delimiters. Okay, and students, यहाँ पे आप अगर आप कोई कमेंट लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ कि ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू रिटर्न हेयर द मेन फंक्शन. तो ये जो मैं ये क्यों लगा रही हूँ, ये आपको प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस कमेंट का इस प्रोग्राम पे कोई भी फ़र्क ना पड़े. तो हम ये कमेंट के लिए द फॉरवर्ड स्लैश एंड दिस एस्टरिस्क सिंबल वी यूज़ इन द प्रोग्राम. ठीक है, हम दोनों साइड्स पे ये चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसका उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े. What is this? This is used for comments. Okay students, that's it for the today's video. I hope you liked it, and if so, don't forget to hit the like button. Okay, and subscribe to the channel for more such videos. Thank you guys.